سوال جب بھی نبی کے دشمن کریں گے سنی کے عالموں سے، تو نجدیوں کا وہابیوں کا، تو نجدیوں کا وہابیوں کا بریلی والا جواب۔ ہلو ہلو، ہاں ہلو بول۔ ہاں بولو، کیوں فون کیے؟ ارے اس کو تو دینا، تو آیا بابا سیری، چل بتا تو بتا، تیرا نصیحت بھی تھا۔ چل تو بتا بابا سیری لنگڑے، بتا کہ تیرے امتیاز بابا پلمبی نے ریکارڈنگ نصیحت ڈالی حوالہ ہے، دوں؟ میری بات سن، تیرے ہاں امتیاز پلمبی نے ایک ریکارڈنگ ڈالی ہے کہ جب انگریز ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو شہید کر رہے تھے، اس وقت دارالعلوم دیوبند بنا۔ تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے دشمن تھے اور مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کر رہے تھے تو دارالعلوم دیوبند کیسے بننے دیا انہوں نے؟ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے کون سی کتاب کا حوالہ دیا؟ کس نے شرائط طے کر لے، دعویٰ پیش کر دے تو۔ کس نے حوالہ دیا؟ چل شرائط طے کر، دعویٰ پیش کر دے تو۔ پیش کر تو دیا میں نے دعویٰ۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند کی زمین جو تھی وہ انگریزوں نے دی تھی، اور انگریزوں کی شے پر ہی یہ مدرسہ بنا تھا، انگریزوں نے ہی تو بنوایا تھا، اور یہ اکابر دیوبند جو تھے انگریزوں کے دلال تھے، انگریزوں کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، انگریزوں سے پیسے ملتے تھے انہیں، اس لیے دارالعلوم دیوبند بنا تھا یہ۔ ٹھیک ہے، ہاں شرائط پیش کروں تمہارے کو، شرائط پیش کروں کو کر لے سائڈ سے، کیا میں بھی کسی کو لائن پہ لے لوں، تیرے ساتھ لائن پہ ہے نا، تو فون کاٹ دیا گا میرا، اور پھر کیا کہا میں بھاگ گیا، میں بھی کسی کو لائن پہ لے لوں۔ میں شرائط بھیج رہا ہوں تیرے کو۔ आपण ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या बंद आहे, कृपया नंतर प्रयत्न करा। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ। ہیلو، میری سعادت ہے۔ السلام علیکم حضرت، لائن پر رہیے تھوڑی دیر کے لیے، کیا ہوا؟ ذرا کسی اذکر بابا سری سے بات کر رہا ہوں میں، آپ لائن پہ رہنا، سنتے رہنا، جب ٹائم ہو جانا، ٹائم ٹیبل جو ہمارے سائز میں طے رکھا جائے تو اسے چھپا دینا، ٹھیک ہے؟ چل بھائی شرائط رکھ۔ رکھ شرائط رکھ۔ رک پرسنل پہ دیکھ۔ بول رکنا، لکھتا ہوں، بھیج رہا ہوں نہ بھیجے مت، زبانی بول، یہاں ریکارڈ ہوگی۔ نہیں، میں پہلے لکھ لوں نا۔ نہ لکھے مت بھائی، زبانی بول دے، لکھ کے رہا ہے، اتنا ٹائم کیوں بلا رہی ہے؟ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں دکان پر ہوں۔ چل جلدی بول۔ ارے بھیجے مت، مجھے بول، یہاں میں دیکھوں گا نہیں تیری شرائط۔ میں بھیج دیا ہوں تیرے پرسنل پہ، تو شرائط بول۔ دعویٰ پیش کرے گا، ہاں ما حکم کے اور مدعا علیہ کو مدعی کے دعوے کی مکمل تنقیح کی اجازت ہوگی۔ اور ایک بار بتا رہا ہوں، سن، مدعی کا دعویٰ اور اعتراض اس کے معتبر عالم ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ اعتراض توبہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، جو مغلوب ہوگا، آج اس کا کفریہ عقیدہ دلائل سے کفریہ ثابت ہوگا، اسے اپنے کفریہ مذہب سچی پچی توبہ کر کے مد مقابل کے مذہب مطلب کو قبول کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، گفتگو 1 گھنٹے کی ہوگی، باقی گفتگو اگر فریقین متفق ہوئی تو آئندہ وقت باہم مشورہ طے کر لیا جائے گا۔ نمبر 4، دوران گفتگو صرف حوالے کا مطالبہ کر سکتا ہے یا مصنف کا نام، کتاب کا نام پوچھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بہانے سے بھی درمیان میں بولنا خود کو حقیقت خود ثابت کرنا ہوگا۔ نمبر 5، اکابر دیوبند کا مسلمان ہونا اگر بریلوی معتبر عالم سے کچھ ثابت کر دیا تو بریلوی مدعی اپنے اعتراض و فتوی سے رجوع کر توبہ کرے گا، ساتھ ساتھ جس نے مسلمان مانا ہے اسے کافر کہنا ہوگا، اور آئندہ اکابر دیوبند پر اعتراض نہ کرنے اور کافر نہ کہنے کا وعدہ کرنا ہوگا۔
नंबर 6, हर फरीक का वक्त सिर्फ 3 मिनट का रहेगा, सिर्फ अपने ही वक्त में बोलने की इजाजत होगी। नंबर 7, जिस इबारत पर एतराज और दावा होगा फौरन पर्सनल पर भेजना होगा इबारत, फिर दोनों फरीक वो इबारत पढ़ेंगे। मैं भेजूंगा तो मैं भी पढ़ूंगा, तुम भी पढ़ोगे, हो गया, तुम भेजोगे तुम भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा, हो गया, जिम्मेदारी है। हो गया तेरा ना। नंबर 8, अरे अभी और है, फरीक में से जो और है हवाला पेश करेगा उसे पहले पर्सन भेजना हो, फिर पढ़ेगा। ठीक है, हो गया। अभी और है। मौजू से राय फरार शिकस्त मानी जाएगी। ठीक, तहजीब और अदब के दायरे में गुफ्तगू होगी। किसी के अकाबी या फरीक आपस में एक दूसरे पर तान तस्नी करे तो शिकस्त और बुज़दिल समझी जाएगी, जब तक वो साबित ना हो जाए, इल्जाम साबित ना हो जाए। नंबर 11, जानिबिन में से कोई भी एतकादियात में से अपने मशहूर अकाबिर के मौक़िफ़ से हटकर बात किया तो शिकस्त समझी जाएगी। और मशहूर वही किताब साबित हो गई के मुखालिफ का कहना कि मैं उन्हें नहीं जानता, अपने कुफ्र को छुपाना समझा जाएगा। ठीक है, शराइत की मुखालिफत शिकस्त समझी जाएगी। नंबर 12 हो गई, चलो हो गया। हो गया। हाँ सामीन हाँ, हजरात, आपने सुन लिया, मैंने अपना दावा भी पेश कर दिया था, हुक्म भी पेश कर दिया था। अब ये राह फराज इख्तियार इसने खुद कर ली, इस बाबा सीनी ने खुद राह फराज इख्तियार कर ली है, तो इसकी शिकस्त हो चुकी है। मेरा दावा ना तो मुसलमान का था ना काफिर का था, कोई दावा नहीं था। मेरा दावा ये था कि तेरे इम्तियाज पालमवी ने जो रिकॉर्डिंग डाली है उसमें ये कहा है कि अंग्रेज लोग जब 1857 में आकर यहाँ मुल्क पर कब्जा किया था तो उस वक्त मुसलमानों की मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को शहीद कर रहे थे। 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। जब क्या वो टाइम देखो 3 मिनट, टाइम देखो, तेरे 7 मिनट हो गए, 7 मिनट बोला तू, 7 मिनट मेरे 3 मिनट क्यों पाम नहीं लगा पूरा बोलने दे मुझे भी, तू 7 मिनट बोल लिया। उसने ये कहा कि जब अंग्रेज मुसलमानों को मार रहे थे, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ रहे थे, अभी बताऊंगा शायद क्या संभाल लूंगा, तेरी मौजू भाग रहा है, तो मौजू से भाग रहा है, तो अब इनका दारुल उलूम देवबंद कैसे बना? तो मैंने उस पर दावा पेश किया है कि दारुल उलूम देवबंद की जमीन अंग्रेजों ने दी थी, दारुल उलूम देवबंद का रजिस्ट्रेशन अंग्रेजों ने कराया था, दारुल उलूम देवबंद की जमीन पर मदरसा अंग्रेजों ने बनवाया था। मेरा मौजू ये है, अब सुन, अरे इस पर शराइत क्यों है? तेरी मेरी कुफर अकीदे की बात थोड़ी हो रही है, तेरी मेरी बात हो रही है दारुल उलूम देवबंद की। दारुल उलूम देवबंद जो है अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनवाया। तो ये जब अंग्रेज यहाँ मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को शहीद कर रहे थे, तो ये तुझे साबित करना होगा कि अंग्रेजों ने तेरा दारुल उलूम देवबंद कैसे बनवा दिया। तेरे अकाबिर अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों की जूतियां सीधे करते थे, अंग्रेजों से पैसे लेते थे, अंग्रेजों ने जमीन दी है मदरसे की और अंग्रेजों के पैसे से बना। और इसमें कुछ चंदा मुंशी राम का, सिया राम का, गंगा राम का, तुलसी राम का, इन लोगों के चंदे इसमें शामिल हुए। ये गैर मुस्लिमों के और अंग्रेजों के उससे बना है। ये तेरा मेरा मौजू है, मुझ से क्यों भाग रहा? तेरा शिकस्त यही हो गई, शिकस्त तो तेरी यही हो गई। अब इसमें जरूरत क्या है कि मैं अपने अकाबिर से साबित करूंगा या अपने अकाबिर से करूंगा? तेरा मुमनकर दलाल, तेरा इम्तियाज पालमवी खुद इस बात को इकरार कर रहा है कि जब हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों को, खानकाहों को, मदरसों को शहीद किया जा रहा था, उस वक्त दारुल उलूम देवबंद बना। तो मेरा मुतालबा ये है, इम्तियाज पालमवी को जो मैं कॉल कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझसे ये पूछना चाहता हूँ, और तू उसका वकील बनकर आया तो तू इस बात का जवाब दे कि जब मुसलमानों के वो मुखालिफ थे, मुसलमानों की जान के प्यासे थे, वो मुसलमानों को शहीद कर रहे थे, मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद कर रहे थे, मदरसों को शहीद कर रहे थे, तो तेरा दारुल उलूम देवबंद कैसे बनने दिया उन्होंने? इसका जवाब दे तू। मेरा और कोई मुझे थोड़ी है। और मेरी शर्त ये है तुझसे, एक सुन, मेरी शर्त एक ये है तुझसे, सिर्फ मेरी एक शर्त है, मेरी शर्त ये है कि अगर तूने मेरी आवाज दाब के रिकॉर्ड की, डबल मोबाइल से रिकॉर्ड की, तो तू अपने आप को ये इकरार करेगा कि तू वलीद बिन मुगीरा की औलाद है। जैसे वलीद बिन मुगीरा अपने बाप की औलाद नहीं था, वैसे तू भी है। इस बात का इकरार कर कि तू मेरी रिकॉर्डिंग आवाज दाब के तो नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग जिस मोबाइल से तू बात कर रहा है इसी से रिकॉर्डिंग करेगा। बोल, इकरार है तुझे? इकरार है? ठीक है, इकरार। अब मुझे ये साबित करके दिखा दूं कि तेरा दारुल उलूम देवबंद कैसे बनने दिया अंग्रेजों ने। बोल लिया ना। हाँ बोल, चल बोल, साबित कर। देखो मौलाना, जरा टाइम देखो इसका, ठीक है? 3 मिनट देख लेना मौलाना इसके। बात तो है, अरे खामोश रहो। खामोश कर रहा हूँ, अपने उन्हें बता रहा हूँ ना, 3 मिनट तेरे देखे जाएंगे। चल बोल। अरे खामोश रहो ना। अरे बोल ना। मैं बोल रहा हूँ, खामोश रहो। बोल 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 बोल। हाँ, सामीन, इसने कहा हाँ शराइत तय करो। मैंने शराइत इसको पढ़ के सुना दिया, इसकी जिम्मेदारी थी। ये बोलता कि भाई तुम्हारी शराइत मंजूर नहीं या मंजूर है। बोल रहा है तेरी शिकस्त हो गई, तेरी शिकस्त हो गई। तुम्हें क्या शराब पी के आते हो? सबे शराबिल की तरह तुम्हारा बुजुर्ग शराब पी के आया क्या? भागने लगा।
अबे शराब तेरे अकाबिरों ने पी, जिनाकारी तेरे अकाबिरों ने की, मर दूर शैतान, मौज से क्यों भाग रहा है? तेरा मेरा मौज भी है, तो मौज से क्यों भाग रहा है? 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 अबे मैंने जो दावा किया उस पर दलील पेश कर। तू ये दिखा तेरा दारुल देवबंद कैसे बना, अंग्रेजों ने कैसे बनने दिया यहाँ? अबे तेरे जिनाकारी तेरे अकाबिर करते थे, लिबासत तेरे अकाबिर करते थे, तेरे इलियास घुम्मन ने जिनाकारी की। चल इसका जवाब दे मुझे, इसका जवाब दे मुझे, खबीस की औलाद। आया वहां से मतलब इधर भाग रहा, सबे सानाविल में चला गया। अबे इसका सबूत दे कि दारुल देवबंद कैसे बना, दारुल देवबंद बना कैसे बना? जो दो बोल रहे हैं सामने हजार देखिए, दो बोल रहे हैं, दो बोल रहे हैं, मैं साबित करूंगा। अबे मैं साबित करूंगा, तेरे अकाबिरों ने लिबासत की, तेरे अकाबिरों ने जिना किया, तेरे अकाबिरों ने लहंगे उठवाए, तेरा थानवी जो था हरामी था, बलद जिना था, वो सब साबित कर दूंगा मैं। मगर मेरा मौजूद ये नहीं है, मेरा मौजूद दारुल उलूम देवबंद कैसे बना, ये इसका जवाब दे। तो जवाब तो सारे सलामी पे जा रहा था कि शराइत, तुमने कहा कि शराइत बताओ, तो मैंने तुझसे उस पर रद्द कर दिया। मैं तेरा जब तू शराइत मौजू के तहत नहीं रख रहा है, मौजू कुछ और है और तू शराइत कुछ और रख रहा है कि किसी ने मुसलमान कहा उसमें से तो उस पर हुक्म लगाएगा, उस पर ऐसा करा। मेरा मौजू कब है? मेरा मौजू ये है, मुझे ये बता कि दारुल उलूम देवबंद कैसे बना। जब अंग्रेज यहाँ मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को शहीद कर रहे थे, तो ऐसी पुरफितन दौर में तेरा दारुल उलूम देवबंद कैसे बनने दिया अंग्रेजों ने? उसका जवाब दे, इधर क्यों भाग रहा? तुमने सवाल किया ना मेरे से, किसने? तुमने सवाल किया। मैंने दावा किया है, मैंने दावा किया, मैं साबित करूंगा कि अंग्रेजों ने जमीन दी थी, अंग्रेजों ने रजिस्ट्रेशन कराया, अंग्रेजों ने मदरसा बनवाया। ये तेरे मुजल्ले सफदर में खुद लिखा हुआ है, तेरे सरफराज खान सफदर ने इस बात का इकरार किया है कि जमीन जो थी अंग्रेजों ने दी थी। मैं साबित करूंगा, और तेरे खुद किताबों से मैं साबित करूंगा कि तेरे अकाबिरों को अंग्रेज पैसे देते थे, टुकड़ों में पलते थे तेरे वो। मेरी बारी मुझे और मैं ये भी साबित करूंगा कि तेरे अकाबिरों ने जो मुजाहिदीन इस्लाम अंग्रेजों से लड़ते थे, उन्हें बागी कहा है। चल इसका जवाब दे, तू भाग रहा यहाँ। बाप को तो मैं 5-6 मरतबा बोल दिया, तो तू गाय फराज प्यार करना, तेरी शिकस्त हो गई, मैं फोन काट दूंगा तेरा। कौन देगा? तेरा फोन काट दूंगा, तेरी शिकस्त हो गई, इसकी जवाब दे। जवाब तू देगा कि मैं दूंगा? तू देगा। तो तू खामोश रहे ना। हाँ तो इधर आ, तू भाग रहा। जवाब मुझसे मांगे, जवाब सुन। जवाब दे, मदरसा बता कैसे बना, मदरसा बता। तो खामोश रहे ना। हाँ मैं खामोश, जो तू सबे सनाबिल पे जा रहा कि सबे सनाबिल की तरह, फलाने की तरह। अबे मदरसे का जवाब दे, ये क्या मुझे मतलब कोई और समझ रहा है? तू जानता नहीं मुझे, तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं, धज्जियां तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे जानता अच्छे तरीके से। इसका जवाब दे, राय फराज प्यार क्यों कर रहा है मुझ से घुमाता है लोगों को। चल इसका जवाब दे मदरसे का। हाँ चल जवाब दे, मदरसे का जवाब दे। चल खामोश हूँ मैं, जवाब दे। इसीलिए मरदूद जो है शराइत तय नहीं करता है। अरे मरदूद में शराइत तय कर रहा हूँ, इसके लिए इसके खिलाफ क्यों जा रहा तू? मैंने ये तेरे ऊपर का, तेरे अकाबिरों को मैंने काफिर को थोड़ी कहा, काफिर तो हम मानते ही उन्हें, अब तो कहूंगा मैं काफिर। तू तो इसका जवाब दे मुझे, मदरसा कैसे बना, इसका जवाब दे। मदरसा जब मदरसा शहीद कर रहे थे तो जल्दी बता, तुम्हारे जवाब दे। 7 सबक जो है। अबे जवाब क्यों नहीं देता? दे दल्ले देख ले, तेरा मुराद यही है दल्ले। अबे मौजू क्या है और भाग कर रहा है? दल्ले देखे ओ जकड़िया जकड़िया दल्ले, जकड़िया दल्ले देख अपनी से। अबे मौजू मेरा मदरसा है, मेरा मौजू ये थोड़ी है। तेरे अकाबिर को तो काफिर मानते ही हैं हम, उस पर तो बात अलग से होगी, वो तो मौजू अलग हो जाएगा। इसका जवाब दे मुझे, मदरसा कैसे बना? अरे जवाब दे रहा हूँ। हाँ दे, मुझसे जवाब मांग रहा है, जवाब नहीं दूंगा ना। अरे जवाब नहीं दूंगा तो खामोश हो जाना। जवाब तो खामोश क्यों हो रहा है तू? अरे तो ज्यादा क्यों भाग रहा? तू मुझ से राय फराज प्यार कर रहा, मैं फोन काटूंगा तेरा। अगर तू मुझ से भागेगा तो फोन काट दूंगा मैं तेरा। तूने 4-5 मिनट बोला है, अभी तक तेरा 7 मिनट मुझे बोलने नहीं दे रहा है। तू 7 मिनट बोला, तूने शराइत में 7 मिनट रख दिए। 7 मिनट बोल दिया, बोलने दे। चल बोल। अरे अब तो मुझे बोलने दे। अरे बोलता क्यों नहीं? तो तू खामोश क्यों नहीं हो रहा है? तू मैं खामोश हो रहा हूँ, चल बोल। सुनाओ किसको? मैं बोलूँ तो चिल्लाता रहेगा। बोल। अगर तू राय फराज प्यार करेगा तो फौरन बोलूंगा मैं, टोक दूंगा तुझे। हाँ मैं रिकॉर्डिंग किस तरह कर दूं? तुझे पता है रिकॉर्डिंग किस तरह कर दो? शामिल है मौना तो रिकॉर्डिंग आपका करेगा तो मेरी बस ये करेगा, और कुछ नहीं होगा तुझसे। तू मेरी आवाज डालेगा। देखें, मैं इसने कोई हवाला नहीं दिया है। काय का? तो मुझसे तलब कर, मैं हवाला दूंगा। तलब कर, मैं हवाला दूंगा। अरे मुझसे तलब कर, मैं हवाला दूंगा। जब हवाला तू तलब करेगा मैं दूंगा। तो मतलब काट क्यों रहा? बात क्यों काट रहा? बात क्यों काट रहा? तूने तलब किया मुझसे हवाला, तूने हवाला तलब किया मुझसे। अभी तूने हवाला तलब किया मुझसे, मैं हवाला दूंगा। कलाम ने ऐसा कहा है। हाँ तो जब अंग्रेज मदरसा मस्जिद तोड़ रहा था मुसलमान का, तुम्हारा देवबंद दारुल बनाना ये गोया उनकी तंद से बना है, उनके पैसे से बना है। तो ये जब ऐसा कह दिया, एतराज कीजिए, बोला मैंने दावा पेश कर दिया, तो जवाब मैं दूंगा ना। जवाब तो सुन, जवाब दे रहा हूँ मैं। शामिल देखें,
ये कह रहा है, जब इसके पर्सनल मैंने हवाला भेज दिया है, तमाम हवाले भेज दिए मैंने इसके पर्सनल पे। देखो सामीन, इसका एक किताब है दवामुल आयद, इसके मुजद्दिद की किताब है, ये मैं भेज दिया हूँ, और एक कई हवाला मेरे भेज चुका हूँ। ये मौलाना आपके पर्सनल में हवाला भेजा है, वो हवाला देखो, खास सबक में अंधेरा करते हैं रोशन में। देखो इसका मुजद्दिद दवामुल आयद में लिखा है सफ़ा नंबर 15 पर, खुशी अंग्रेजों की हिमायत में हिंदू और मुसलमान सिपाही लड़े और मिस्टर गांधी ने हिम्मत अफजाई में बरसों तक हिस्सा लिया। यानी अंग्रेज की हिमायत किसने की? मुसलमान ने की। कौन कह रहा है? इसका मुजद्दिद क्या है? तू बता अब तू मुसलमान किसे बेदंडी मानता है? पहली बात, यहाँ पे मुसलमान कह रहे हैं तुमने हिमायत की हो। इसे हवाला दे रहा हूँ सामने, वो कह रहा है संदेह से बना है। वो जो हवाला मैं दे रहा हूँ संदेह से सिस्टम ऐसा बना है। ये देखो, ये मैंने एक हवाला भेजा है फतवा रज़विया के अंदर, एक रसाइल फतवा रज़विया, इसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 12 पर। देखें इसमें लिखा है उसका जवाब मुतलब जो जवाज होना, मगर फिर भी एहतियातन शक्ल शर्त में दिया गया है कि जबकि वो मदरसा सिर्फ दीनियात का है और इमदाद की बिना पर अंग्रेजी वगैरह उसमें दाखिल न की गई, तो उसके लिए मैं शरान को लेने में कोई शरान हरज नहीं। तालीम दीनियात को जो मदद पहुंचती थी उसका बंद करना महज बेवजह है। यानी अंग्रेज की तरफ से वो जायज है, लेना हराम नहीं है और बंद करना शरान जायज नहीं है। दिया उसका जवाब दिया गया जो मदारिस है हर तरह से खालिस इस्लामी और वहाबियत नजरियत वगैरह हमारा दाखिल न हो, उनका जारी रखना मूजिबे अजर अजीम है। अरे अगर अंग्रेज इसे बोलने दो, इसे बोलने दो, इससे बोला जाए। ये देखो, अंग्रेज का दाखिल होने को उसके पैसे अगर अजीम मानती है, लेकिन वहाबियत दाखिल नहीं हो। इनके यहाँ अंग्रेज मुसलमान है, वहाबी मुसलमान नहीं है। अरे आप चुप जाओ, मौलाना आप चुप जाओ, मौलाना आप चुप जाओ, बोलने दो। 343 पे लिखा हुआ है कि माहवार सरकार आली जहाँ से इमदाद मदरसा के लिए मुकर्रर हुई मंजर इस्लाम में, ठीक है, 100 रुपये माहाना जो है इमदाद मुकर्रर हुई। ये मंजर इस्लाम का हाल है। अगर देवबंद का मदरसा में, तो अगर तुम्हारी घर साबित करूंगा मैं, किससे हुई? देवबंद का मदरसा अपने मुसलमान की संदेश करता था। तुम्हारे घर की किताब है, तुम्हारे घर की बात लिखी हुई है, तुमको पता नहीं है। और अगर हवाला दे रहा हूँ सामने, क्योंकि सुनेगा नहीं, मुझे पता है। मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तू झूठ बोलता रहे, जितना बोल रहा बोल झूठ बोलने से पूरा टाइम दिया मैंने बोलने के लिए। अजमतों के 5 बार, हाँ, जैसे अजमतों के 5 बार है, इसका अब्दुल हकीम शरफ कादरी है, वो लिखता है जश्न ईद मिलादुन नबी को अंग्रेज के ज़ुल्फ़िकार तवक्कली ने मनवाया। उससे पहले 12 वफात का नाम था, 12 वफात के नाम से बात हो रही है। पकड़ करके जो है उसको अपना बात मान करके उसको शरीयत का नबी मान करके अंग्रेज को उससे मनवाया और 12 वफात निकाल करके। ये सफर नंबर 335 में लिखा हुआ है। हजरत अल्लामा तवक्कली की जुमला तारीफ से न सिर्फ ये कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिसाना मोहब्बत का पता चल सकता है। तेरा टाइम होगा, उस दिन की आम तासीर मंजूर करवाई। ताला आदि नाम बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। ये अंग्रेजी पढ़ाई की बात चल रही है, फटाफट जो दी है अंग्रेजी पढ़ाई आपको मुबन कर रसूल और ईमान का जो समझ तूने दावा में अंग्रेज की इमदाद से बना है, अंग्रेज का बनाया। हवाला दिया है, नाम कैसे हवाला कैसे देखिए 5 मिनट बोलिए, 5 मिनट बोलिए, देखिए मुझे सामने इसने
बंद किया था, दरिया नहीं, ये वो बंद किया था। इसने जो अभी मैंने तक जो हवाले हवाला किए दिया हैं, कोई हवाला इसने दुरुस्त नहीं दिया है, कोई हवाला दुरुस्त नहीं किया है। अब देखिए झूठ बोल रहा है, बोलने नहीं दे रहा मुझे बोलने नहीं दे रहा। देखो बोलने नहीं दे रहा, इसने हर हवाला झूठा दिया है, कोई हवाला इसका दुरुस्त नहीं है, सब हवाले झूठे हैं। इंडिया का हवाला दिया उसमें लिखा हुआ कि अंग्रेजी पढ़ाई के लिए, और ये जो इसने 100 रुपए का मतलब, अब देखिए बोले जा रही है, देखिए बोले जा रही है। मुझे सामने हज़ार देखिए आप, ये फोन काट कर भाग गया है, इसने फोन काट दिया। और ये अब तक जो भी बोला है, जितने जो किताबें भी इसने पढ़ी हैं, सब झूठ बोला है, क्योंकि फतावा रज़विया में अंग्रेजी पढ़ाई के लिए लिखा हुआ है। और जो ये 200 रुपए कह रहा है ना कि मंजर इस्लाम को मिलते थे, तो वो कौन सी हुकूमत से मिलते थे? हुकूमत तुर्किया जो उस्मानिया हुकूमत थी, उसका जिक्र हो रहा है यहाँ कि उन्होंने खुश होकर मंजर इस्लाम को 200 रुपए माहाना नजराने पेश करते थे वो। और ये तीसरी किताब में भी इसने झूठ बोला है, सब ये झूठ बोल रहा है। और इसके अकाबिरों ने अंग्रेजों से जंग करने को भी मना कर दिया। और इस हिंदुस्तान को, जिसमें क्या इनका मदरसा बनवाया उस पुरफितन दौर में, जबकि मुसलमानों के मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को ये अंग्रेज शहीद कर रहे थे, उस वक्त ये लोग देवबंदी हजरात जो अकाबिर थे इसके देवबंदी, वो इसे दारुल हर्ब कह रहे थे हिंदुस्तान को। जबकि मेरे आकाए नेमत, पीर तरीकत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला ने कलम उठाया और लिख दिया कि नहीं, ये दारुल हर्ब नहीं बल्कि ये दारुल इस्लाम है। और ये मरदूद शैतान ये चाह रहे थे कि ये दारुल हर्ब हम कहेंगे तो यहाँ से मुसलमानों का पत्ता ही सफा हो जाएगा। मगर कुर्बान जाइए आला हज़रत पर कि आपने कलम अपना चलाया और कहा कि नहीं, ये दारुल इस्लाम है। इतने बड़े मक्कार और दज्जाल हैं ये। इसने मेरी आवाज भी दाब के रिकॉर्ड की होगी, मालूम है। और ये जो इसका दलाल चलाया था उसने भी देख लिया इसका कि इसका क्या आलम हुआ। अब बात चल रही थी मदरसे की, और पहुंच रहा कहाँ, ये कहीं से कहीं पहुंच रहा है। ये वैसे तो कहता मौज से जो भागेगा उसकी शिकस्त होगी, अब मौज से खुद भाग रहा है। देख लिया सामान्य हज़रत आपने, और कोर्ट काट के भाग गया ये।